Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? This is Bhupesh and in this video I'm going to teach you that how to cover your British literature. ठीक है, how to study your British literature for your UGC NET English literature exam and for your many other English literature competitive exam which include your SET, GATE, TGT, PGT, DSSD, your PhD entrances, your MA English entrances, right? So here in this video, first we will start with all the periods. We have 15 to 16 periods. First of all, we need to have an idea that how many periods do we have here. And then what are the areas that we should be focusing at, that we should be targeting, right? So this is what we will be talking here. So first of all, we will start with the very first period, that is your एंग्लो सेक्शन, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए, आपको कम से कम ये तो पता चले कि ये पीरियड है, अच्छा ये फॉर्मेट है, ये इसका एक फ्रेमवर्क है, अब हमें इसके ऊपर काम करना है। सबसे पहले हम ये चीज लेंगे, देन ये आपके लिए एक रोड मैप बन जाएगा। यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड एनी मोर, ठीक है? एवरीथिंग विल बी क्रिस्प एंड क्लियर फॉर यू, right? I'm here to make your journey easy, and if you want to make it more easier, so my professor Note provides you exam oriented study material and a mentorship program, so you can enroll for that by contacting us on the given numbers. Now the second one is the Anglo-Norman period, right? Third one we have is your age of Chaucer. Now, I'm forgetting the time period. Okay, so it's 1066. Now this is a 1066 to 1350. Your Chaucer was born in 1350 or 1314, and till the 1400 your age of Chaucer goes. Now we have the fourth period, which is the age of revival. It is also called the Dark Ages, and it is also called the beginning of your Renaissance period. All right, revival age. It is the beginning of the Renaissance, right? And it is from the 1400 to the 1500. Now we have the fifth age, which is your Elizabethan age. Elizabethan age, right? Elizabethan age. Elizabethan age goes from the 1557 to your 1603. Then so where did these 57 year went? You did not take them into consideration. Well, sometime the beginning of the Renaissance is also taken till the 1550, right? This age, this Elizabethan age and your age of revival, they all comes under the Renaissance period. Renaissance period, ठीक है? तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं रेनेसा बोल दिया। देखो, अब रेनेसा क्या था? एक नई बिगिनिंग थी। द वे ड्रामाज वर रिटन, द वे योर पोएट्री वाज रिटन, राइट? दे हैव स्विच्ड फ्रॉम फेथ टू योर रीजन, फ्रॉम गॉड टू ह्यूमन. दे वर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन, दैट हाउ डज ह्यूमन माइंड वर्क, व्हाट इज ह्यूमन, right? They start discussing these things in this period. So all of it comes under the Renaissance period. Particularly the period from 1500 to 1600 is taken under the 1500 to 1600 is taken under the Renaissance period. इस एज को, इस पीरियड को, जो आपका ये 100 years का पीरियड है, इसे लिया जाता है आपका अंडर दी रेनेसां पीरियड, ओके? और आपका एज ऑफ एलिजाबेथ भी यहीं पे आ जाता है, पर आपका बिगिनिंग हुआ यहां पे, आपका बिगिनिंग होता है यहां पे रिवाइवल एज में, ठीक है? जहां पे आपका वो वॉर होता है, जहां पे आपके टर्क्स जो है उस आपके ग्रीक कैपिटल पे अटैक करते हैं, राइट? और इटली में स्कॉलर्स आपके रोमन्स आते हैं, देन योर थॉमस, आई फॉरगॉट हिज नेम, हु रॉट द टोटल मिसेलेनीज, राइट? दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पेट्रार्क, द सोनेटियर, द इटालियन सोनेटियर, राइट? सो दिस इज हाउ द इन्फ्लुएंस वाज कमिंग इन, और ये हमारा पीक पे था एलिजाबेथन एज, द गोल्डन एज इट इज नोन, राइट? फिर आपका सिक्स्थ एज आता है, फिर जो कि आपका है जैकोबियन एज, जैकोबियन एज, ठीक है? जैकोबियन एज का आपका पीरियड है 1603 से लेके 1625 तक, ठीक है? फिर आपका आता है सेवंथ पीरियड, दैट इज योर कैरोलाइन एज, कैरोलाइन एज, ठीक है? कैरोलाइन एज का टाइम पीरियड है आपका 1625 से ये आपका 1649. ड्यूरिंग दिस टाइम वी हैव योर Caroline poets, your metaphysical poetry, right? Then is your Commonwealth period as well. It is known as Commonwealth
Commonwealth period, also known as a Puritan period, इंटररेगनम पीरियड, ठीक है, जो बीच का जो एक इसमें वक्त है जहां पे आपका कोई मोनार्क नहीं है, कोई मोनार्की नहीं है, देयर इज नो किंग सिटिंग ऑन द थ्रोन, इट इज अ पार्लियामेंट व्हिच हैज टेकन द रूल अंडर इट्स हैंड, ठीक है। फिर क्या होता है, आपकी मोनार्की आ जाती है, आपका मोनार्क, एक राजा आपकी गद्दी पे बैठ जाता है, उसे कहता है रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन किसका, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड फ्रॉम द 1649 to 60, there was no king sitting on the throne, right? But in now 1660, okay, I forgot my duster, give me a minute. Okay, I hope you have noted all of these things down, right? Please do if you have not. You can just backward the video and just take a screenshot. We will start with the restoration now. Okay, I hope now things are clear for you that what does British literature actually contains. And beside this, I have also started this your playlist, this series on the history of British literature, where I'll be covering your whole syllabus. Till now we have covered the 6 classes. The 7th class on Shakespeare is coming very soon, but since our exam is approaching near, so I'm just thinking to focus on your previous year's question papers to give you those some of the very important topics. I might just start a series on the important topics which will help you in your upcoming examination, or on whatsoever you want a class. Please let me know in the comment section below, right? Right, हमने अभी तक कितने periods cover करे थे? Anglo-Saxon, Anglo-Norman, Age of Chaucer, Age of Revival, Age of Elizabeth, Age of Jacobean, your Caroline age, your Commonwealth age. 8 ages were completed. Now started your 9th one. In your 9th one, we have the Restoration age. Restoration age. The restoration of monarchy, right? From the 1600 to the 1700. Please let me know in the comment section that which king was ruling, right? Who restored his rule during this time period in the age of restoration, who was sitting on the throne. Please let me know in the comment section below. Now we have the 10th age, which is the Augustan age. Augustan age. Augustan age, why it is known as the Augustan age? These are the questions that should come to our mind. Look, every single age should be seen as a word, and now we should know the meaning, the two meaning. Each word has two meaning. One is a denotative meaning, one is a connotative meaning. एक है जो उसका exact meaning जब बोलते हैं ना कि home means building, ये उसका denotative meaning है। home है एक structure है, एक building है, home है जी, वो है home, ठीक है। एक है connotative meaning, जो उस घर का एहसास है। How does that word makes you feel? What is the essence of that word? कि home शब्द का essence क्या होता है? We know that it is a family, it is a bond, it is a bond of love, right? That is the connotative meaning. तो हर एक restoration क्या होता है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एंग्लो क्या होता है, सेक्सन क्या होता है, कि चौसर कौन था, एलिजाबेथन क्या है। एलिजाबेथन एज है तो है, पर what does age of Elizabethan says, what does it reflects, है ना। ऑगस्टन क्या है, ठीक है। अब ये रोमन पीरियड का यहां पे क्या हुआ था, they were imitating that period of the Augustan, ठीक है, इसलिए इसको ऑगस्टन एज कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने वो सारे उनका ही अटायर they have adopted, ठीक है, उनका ही पहनावा इन्होंने भी पहन लिया था। किसने, अपनी राइटिंग में भी ऑगस्टन एज के जो राइटर्स थे उनको फॉलो कर रहे थे। कौन, जो आपके ऑगस्टन एज पहले का था, जो आपका रोमन पीरियड हुआ, ठीक है। तो पहले आपको हर एक एज को एज अ वर्ड देखना है, ठीक है। कोई भी टर्म, एक टर्म होने से पहले आपके लिए एक शब्द होना चाहिए जिसका आपको पता होना चाहिए, ओके। ऑलराइट, ऑगस्टन एज तो ये होती है 1700 से लेके 1745 तक। फिर ऑगस्टन एज के बाद आती है हमारे पास एज ऑफ सेंसिबिलिटी। Sensibility. This age is devoted to your Samuel Johnson. Such a huge impact he has. The whole age was named after him in a similar way, your age of Chaucer, because they did something new, something different. Even though he lived a life of poverty, but he
somehow make out of it. 1745 से लेके आपका ये आता है 1785 तक, ठीक है। अब यहां पे आपकी शुरू होती है प्री रोमांटिक एज, ठीक है, ठीक है। कुछ रोमांटिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें देखने मिल जाते हैं, जैसे कि सेंसिबिलिटी है। सेंसिबिलिटी भी एक वर्ड है जो आपका अटैच करता है रोमांटिसिज्म में। तो यहां पे हमें रोमांटिक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, इस एज में दिखने शुरू हो गए थे, ठीक है। तो 12 रोमांटिक्स एज के जो आपके प्री रोमांटिक्स है, विलियम ब्लेक हो गए, कॉपर हो गए, ठीक है, विलियम कूपर, वो आपके क्या है, बिगिनिंग में आपके प्री रोमांटिक पीरियड में आ जाते हैं, फ्रॉम द 1785 टू 1798। हम इसे 1800 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका 13 एज, जो कि आपका रोमांटिक पीरियड है, रोमांटिक पीरियड है। अब इन पीरियड्स में क्या फोकस करना है, कौन राइटर है, कैसे देखना है, क्या करना है, कौन से वर्क को किस तरह से डील करना है, एवरी सिंगल थिंग आई विल बी टेलिंग यू, राइट। So please watch till the very end. This video is just for you, right? From 1800 to 1837, and I want you guys to put an effort here, right? If you're really serious about this preparation, I want you to complete this just in a one go. ये ना एक डिप्रेशन बन जाता है अगर आप जाओगे ना इसके साथ कि जी मैं अभी तैयारी कर रहा हूं सर, मेरे पास कोई बचा है सर, मुझे ना आपका कोर्स लेना है, ये करना है सर, मैं आपकी बस सीरीज देख रहा हूं, मैं ये पढ़ रहा हूं। यार आप इंस्टॉलमेंट्स में क्यों कर रहे हो तैयारी? एक बार आप लग के आप 6 महीने तक इन्वेस्ट करो, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको कोई कोर्स है वो लेना चाहिए। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आपको वो एक हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको हर एक चीज मैनेज करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है। स्ट्रगल किसकी लाइफ में नहीं है? ऐसा कोई आदमी है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, और स्ट्रगल नहीं है फिर मजा भी कैसा, ठीक है। जवानी की उम्र यही होती है आपकी 30 तक, उसके बाद इस एज में आपने कुछ अचीव कर लिया, समथिंग कंक्रीट, उसके ऊपर फिर आप डेवलप करते हो। इन्वेस्ट कर दो, चाहे वो एनर्जी वाइज हो, चाहे वो टाइम वाइज हो, चाहे वो आपका मनी वाइज हो, ठीक है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा, ओके, एक बार में, वरना बड़ा डिप्रेसिंग हो जाती है चीज, ये बार बार निकल नहीं रहा है, कभी 1 नंबर से रह रहे हैं, कभी 2 नंबर से रह रहे हैं। ऐसा करो, एक बार आप 6 महीने के लिए बैठ जाओ। 6 महीने की तैयारी तो बड़ी ही जरूरी है। अगर आपको जेआरएफ निकालना है 14-15 घंटे, चलो बाद में आगे बातें चली रहेगी फिर ये। ओके, विक्टोरियन पीरियड, ठीक है। विक्टोरियन पीरियड आपका है 1837 से लेके आपका ये 1903 तक। अब यहां पे आपका एडवर्डियन एरा भी आता है, बट वी डोंट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन दैट मच। बट आपका एडवर्डियन एरा भी से कहा जाता है कि 1903 से जो कि आपका 1914 तक रहा, ठीक है। बट हम उसे मॉडर्न एज में ही लेंगे, ठीक है। 15वां आपका आ गया मॉडर्न एज, ठीक है। मॉडर्न एज आपका आ गया, इसे हम लेते हैं 1900 से 1945 तक, क्योंकि यहां पे आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी एंड हो चुका था। एंड नाउ द 16th वन, दिख भी रहा है ये? हाँ, मैं सोचा कैमरा यहीं तक लगा है। ओके, ऑलराइट, सो नाउ वी हैव द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड 1940 टू प्रेजेंट, राइट, प्रेजेंट एरा, जो आपका कंटेम्पररी पीरियड है यहां तक। अब ये 16 एजेस हैं, अब इन्हें आप लिख लो, हर एक एज को टारगेट करना। अब इन एजेस के अंदर क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर आपके मेजर राइटर्स, फिर आपके माइनर राइटर्स, फिर उनके वर्क को कैसे डील करना है, दैट आई विल ऑल्सो टेल यू हियर। फिर जो मेजर इवेंट्स हैं उनको देखना है, कैसे स्टडी करना है, एवरी सिंगल थिंग इज गोइंग टू बी सुपर इजी फॉर यू। सारी समस्याओं का हल मिलने वाला है आपको। नेट, देखो जो नेट एग्जाम है ना, वो इजी है क्रैक करना, वो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है नेट एग्जाम क्रैक करना। सबसे ज्यादा मुश्किल है जेआरएफ मुश्किल है, नेट तो नहीं है मुश्किल। नेट तो मैं आपका, बोलो आप 2-3 महीनों में यूं निकाल दूंगा आपका नेट, यूं। जेआरएफ मुश्किल है, जेआरएफ बड़ा टफ है, बड़ा टफ मतलब लगता है उसमें टाइम यार, ठीक है। प्रेपरेशन बहुत होती है उसकी, पढ़नी बड़ी चीजें पड़ती हैं, 8-10 रिवीजन दे रहे हो, ठीक है, और इक्वल टाइम देना पड़ता है आपके पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उसमें। तो ये सारी चीजें हैं। अभी मेरे को ये डाउट हुआ है कि वीडियो मैंने ऑन करी है कि नहीं, मैं डाउट से
भर चुका हूं, बिकमिंग स्कीजोफ्रेनिक। ओवर द पीरियड टाइम ये चीजें होती हैं, सबको होती हैं, आई डू नॉट नो। ओके, नाउ व्हाट यू शुड बी फोकसिंग एट। बता दी मैंने 16 के 16 एजेस, आपको पता चल गया कि 16 पीरियड है। आपका सबसे बड़ा लगता है दुख जो एक बिगिनर का होता है उसका पूरा हो गया, वो मतलब बिल्कुल दूर हो गया, उसको पता चल गया कि क्या ब्रिटिश लिटरेचर है। अच्छा ये 16 एज है, अब मेरे को यूं चुटकियों में याद है, ये क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन आ गया ना, ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं है, आपके पास चाहे गूगल भी है, आपके पास चाहे गूगल भी है, आप सोच रहे हो कि मैं खुद ही करूंगा, पर शायद आप में से बहुत से लोग अभी तक ये चीज नहीं कर पाए थे ना अपने बलबूते। ये नहीं होती है। और जहां पे जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, ओहो ये सर देखो ये बोल रहे कि मेरा कोर्स ले लो, ये ठीक नहीं है। ठीक है, वो आपकी भलाई के लिए होता है वो कोर्स। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है, अगर आपको मेरे जैसा टीचर मिल रहा है पढ़ाने के लिए, तो आपके लिए वैल्यूएबल ही है ना वो। आई विल बी इन्वेस्टिंग माई टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि मुझे भी एक अच्छा रिजल्ट चाहिए होता है और मैं पूरी जी जान से लग जाता हूं, ठीक है, बच्चे के साथ, बिकॉज आई नो हाउ व्हाट नो इट रियली मैटर्स फॉर देम एंड फॉर मी एज वेल। ठीक है, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग अवर टाइम एंड एनर्जी। हमारे पास टाइम और एनर्जी तो है, और है क्या हमारे पास? सबसे एक्सपेंसिव चीज जो लाइफ में है वो है आपका टाइम और एनर्जी। ठीक है, फोकस लगा के टाइम एनर्जी कहीं लग गया ना, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ओके, क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आप एज शुरू कर रहे हैं, सबसे पहली चीज आपको फोकस करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स पे। दिस इज द अटायर ऑफ द एज, ये पहनावा है एज का। यहां से पता चल जाता है कि ये है एज। क्या आइडियोलॉजीज है एज की, क्या फॉलो किया जा रहा है, समाज कैसे चल रहा है। आज आप देखो, अभी की कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, उस पोस्ट मॉडर्न एज का टाइम पीरियड देखते हैं, क्या हो रहा है। डिजिटल एज है, वी आर पेइंग मोर अटेंशन टू द डिजिटल वर्ल्ड। एक डिजिटल वर्ल्ड अलग ही क्रिएट हुआ है, जहां पे आपका एवेटार्स जी रहे हैं। ठीक है, योर अल्टरनेटिव सेल्फ इज लिविंग ऑनलाइन। ठीक है, आपके एवेटार्स बनते हैं, आप फिक्शनल जगहों पे जाते हैं। ठीक है, और हमारा चंद्रयान 3 अभी गया, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में हो रही है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट यहां पे बढ़ता चला जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। ठीक है, हमारे पास भी यहाँ पे न्यूज़पेपर जैसे उस वक्त हुआ करते थे, द हिंदू है, मुझे द हिंदू की लेफ्टिस्ट अप्रोच लगी। ठीक है, देयर वाज अ वन टाइटल, देयर वाज अ वन आर्टिकल लिखा गया था भारत के ऊपर, द हिस्ट्री, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ, क्योंकि वो भी क्या समझते हैं कि वो समझते जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो बनेगा गोडसे वाला। यार गोडसे ने अपनी एक और डेफिनेशन दी थी, हिंदू वर्ड वाज नॉट टर्म्ड बाय हिम। बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब इस वक्त हो रहा है। अब जो आपके लिटरेरी वर्क्स होंगे, क्या उनमें आपको ये इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा? देखने को मिलेगा। हमारी खुशियां डिपेंड करेंगी ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ समबडी एल्स। किसी ने लाइक बटन दबाया, ठीक है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता किसने लाइक बटन दबाया, इस वीडियो में नहीं दबाया। मैंने इस वीडियो को बनाते हुए कुछ सीखा, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। मेरे लिए मेरा वक्त मायने रखता है। मैंने आपको इतना सा वक्त देने का सोचा है, दैट दिस इज द टाइम पीरियड दैट आई विल डिवोट फॉर दिस वीडियो। बस उसमें कुछ चीज बन के ऐसी बननी चाहिए जो लोगों की मदद कर दे। अगर आपकी मदद होगी, आपको पता है इंटरनल आपके माइंड में कि आपको कितनी मदद हुई है। ठीक है, अब आपने जाहिर ना करना हो, कमेंट सेक्शन में जाहिर ना करना हो लाइक बाकी, क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं तो कमेंट नहीं करता भाई, मैं तो लाइक नहीं करता, मैं तो सब्सक्राइब नहीं करता, मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूं। ठीक है भाई, होंगे बहुत बड़े। ठीक है, तो आइडियोलॉजीज हैं वो इस एज की क्या है, ये हमें पता चलता है, क्योंकि राइटर वही तो लिखेगा। जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई, आपको पता चल गया कि अब क्या इस एज में उथल पुथल हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द एज। कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहली चीज ये है। फिर आता है हमारा इवेंट्स। इवेंट्स क्या हो रहे हैं, क्या इवेंट्स हो रहे थे एलिजाबेथन एज में? क्या इवेंट हो रहे थे? वॉर हो रहा था, स्पेन ने वॉर किया, एलिजाबेथन इंग्लैंड पे क्यों वॉर किया? सबसे पहली चीज जो फिलिप्स था उसने अप्रोच किया था, ही हैज प्रपोज द एलिजाबेथन, the Queen Elizabeth, he has proposed, but she denied. She said that I will live virgin forever, and she did. Right? I have already married to this nation. एक तो वो चीज थी, और दूसरी चीज ये थी कि that the Spain was Catholic and the England has been become the Protestant. अब रोम भी उन्हें क्या, रोमन चर्च भी उन्हें एड करा था इस वॉर में। ये सारी चीजें हुई, फिर वो वॉर हुआ, है ना। पर जो आपके जो सी था, ठीक है, उस वक्त ऐसी सिचुएशंस हुई कि इट डिडंट वर्क इन देयर फेवर, है ना। सो दिस इज हाउ दे जस्ट लॉस्ट द वॉर एंड दे हैव टू टर्न होम एम्प्टी हैंडेड। ठीक है,
तो ये इवेंट भी क्यों हो रहे हैं, हमें ये भी पता चल रहा है कि ओहो कैथोलिक चर्च था, है ना, प्रोटेस्टेंट चर्च था, इस वजह से ये चीजें हो रही थी। जब आपको ये पीछे की हिस्ट्री जब पता चलती है ना, फिर हमें अच्छा लगता है। अदरवाइज तो यही हमें हमें लगेगा कि लाइट भी चलेगी, देखो अब मैं उतना खूबसूरत में नहीं दिखूंगा। चलो ठीक है, ओके। इवेंट्स है ना, इवेंट्स हो गए, अब पता चल गया आपको। फिर है मेजर माइनर राइटर्स। मेजर माइनर राइटर्स, मेजर माइनर राइटर्स, जब आप मेजर राइटर्स आप पढ़ते हो ना, तो उनकी नॉवल पे आप क्या फोकस करते हो? उनकी नॉवल पे आप ये फोकस करते हो टाइटल, ठीक है, वेयर द टाइटल इज टेकन फ्रॉम। आपका फॉकनर का वर्क है ना, फ्यूरी वर्क दैट ही हैज रिटन, द साउंड ऑफ फ्यूरी, राइट, द वर्क इज टेकन फ्रॉम द कोट ऑफ द मैकबेथ, दैट लाइफ इज a sound of fury, something, a tale which is told by idiot which signify nothing, ठीक है। तो वो उस तरह का एक कोट था, वहां से वो टाइटल लिया गया था। आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपका टाइटल कहां से आया है, ठीक है, ओके। और कि इस टाइटल का मीनिंग क्या है। अलग अलग तरह की नॉवेल्स हैं, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि किसको ये नॉवेल डिवोट की गई है, और आप बोलोगे सर ये चीजें मुझे कहां मिलेंगी, ठीक है। एक तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल में मिलेंगी, दूसरा आपको गूगल पे सर्च करनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूं, ठीक है। फिर आपकी आती है पब्लिकेशन डेट, कि पब्लिकेशन डेट क्या है, एंड व्हाट वर्क विच राइटर हैज इन्फ्लुएंस दिस वर्क, कि किसी राइटर का कोई इन्फ्लुएंस इस पे है ना, किसी राइटर का इन्फ्लुएंस है या किसी और वर्क का इस वर्क पे इन्फ्लुएंस है, आपको ये भी देखना पड़ता है। और आपको ये चीजें बाय द वे जो विकिपीडिया का इंट्रोडक्शन है ना, वहां पे खास तौर से आपको ये मिल जाती हैं, ठीक है। पब्लिकेशन डेट हो गया, ठीक है, डिवोट किसके लिए की गई है, टाइटल कहां से लिया गया है, ठीक है, एंड व्हाट डिड आई टेल यू, द इन्फ्लुएंस, द वे द इन्फ्लुएंस, दैट व्हाट ऑथर विच अदर बुक हैज इन्फ्लुएंस दिस वर्क, ये सारी चीजें भी आपको विकिपीडिया के इंट्रोडक्शन में मिल जाती हैं, और ये आप फोकस करते हो एक वर्क को स्टडी करते हुए। बिसाइड दिस आगे हमारी क्या बात आती है, दूसरी बात आती है फिर हमारी समरी पे। पब्लिकेशन हमने देख लिया, डिवोट किसको की गई है, टाइटल क्या है, ठीक है। फिर बात आती है हमारी समरी की। समरी क्या है, समरी क्या है, अब समरी क्या है, समरी एक प्लॉट है। प्लॉट क्या है, प्लॉट स्टोरी, मतलब प्लॉट का मतलब स्टोरी, और स्टोरी बनती है दो चीजों से। कोई भी स्टोरी, चाहे हमारी लाइफ की स्टोरी हो चाहे लिखी, वो बनती है दो चीजों से। उसमें हमें दो ही चीजें याद रखनी है, एक है इवेंट और दूसरा है कैरेक्टर। The two things that we have to remember while we are reading a story, a summary, is a event and a character. उसमें अब कैरेक्टर भूल जाते हैं। कैरेक्टर क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम ये नहीं देखते कि what is the role which is played by this character in continuing this story. कोई भी स्टोरी होती है ना, कोई भी स्टोरी इस स्टैंड से जाके यहां तक जाती है, फ्रॉम हेयर टू हेयर। इलेप्स टाइम, इसे हम इलेप्स टाइम कहते हैं, जो ये बीच का प्रोसेसिंग टाइम होता है, इलेप्स टाइम कहते हैं, है ना, जो कमेंसिंग के बीच और फिनिशिंग के बीच होता है, इलेप्स टाइम करके बोलते हैं, है ना। तो वो कैसे बढ़ता है, कैरेक्टर और इवेंट। समटाइम दीज इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन द बैकड्रॉप, राइट। द स्टोरी इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सर्टन इवेंट्स। जैसे आपका टेल ऑफ टू सिटीज है, तो वहां पे क्या हो रहा है इवेंट, इन द बैकयार्ड, पीछे क्या स्टोरी चल रही है, वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन की ओर, जो जिन चीजों से द कॉजेज टू मेक दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपन, दे वर टेकिंग प्लेस इन द बैकग्राउंड, ठीक है। अब उस एरा में आपके कैरेक्टर कैसे रह रहे होंगे, उस एरा में आपके कैरेक्टर कैसे रह रहे होंगे, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट उन कैरेक्टर्स पे होगा। तो आपको यह भी रखना है याद कि इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं उस स्टोरी में। हर स्टोरी में कुछ ना कुछ इवेंट होता है। आपका जो स्टोरी है, जहां पे हमें ओथेलो है, ठीक है, यागो है, आपका ओथेलो है, डेस्डेमोंडा है, उसमें क्या इवेंट हो रहे हैं, क्या स्टोरी चल रही है, यागो को पोजीशन चाहिए। नाउ व्हाट ही इज डूइंग फॉर टू गेट दैट पोजीशन, राइट, एंड ओथेलो डिड नॉट गिव हिम दैट पोजीशन। नाउ ही पुट द सीड ऑफ जेलसी इन हिज माइंड, ठीक है। ये इवेंट हो रहे हैं। अब जब जो भी उसके एक्शन है ना, उसकी वजह से ही तो वो स्टोरी आगे बढ़ रही है।
So we have to know that what is the pivotal role of that character. स्टोरी बिना कैरेक्टर के रोल के आगे नहीं बढ़ेगी, कुछ ना कुछ एक्शन वो डाल रहा है तभी वो एक स्टोरी बनती है। तो हमें कैरेक्टर को और इवेंट को याद रखना है कि क्या हुआ स्टोरी में, क्या हुआ। ठीक है, मैकबेथ की स्टोरी में क्या हुआ, व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ मैकबेथ, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, एसेंस क्या है, पता नहीं चलता, डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर लो दैट व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द मैकबेथ। ठीक है जी। कैरेक्टर्स और इवेंट है ना। अब सर ये याद कैसे करें, ये हमें फोकस करना। और एक और चीज होती है, विकिपीडिया के पेज में आपका एक सेक्शन होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का भी, कुछ कुछ में दिया होता है वो। जैसे कि आपका इस बार एंटोन चेखोव से हमसे पूछा गया था ना कि शेक्सपियर के हेमलेट पे कौन से इनके जो 2 वर्क हैं जो ही हैज which of his works are influenced by the Shakespeare's work Hamlet। तो एक तो सियागुल था, एक आपका अंकल वान्या था। ठीक है, तो उन 2 वर्क्स में हमें देखने को मिलता है। सियागुल में तो डायरेक्टली नीचे लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी आपका लिखा गया है कि शेक्सपियर के हेमलेट वर्क से इन्फ्लुएंस है ये वर्क। ठीक है, तो एक मेजर राइटर, माइनर राइटर, जब हम कोई भी आपका नॉवल पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या फोकस करते हैं, एक टाइटल याद रखना है, पब्लिकेशन याद रखना है, किसको डिवोट किया गया है ये आपको याद रखना है, किसका इन्फ्लुएंस है इस वर्क पे ये याद रखना है, इस वर्क का सेंट्रल आइडिया क्या है हमने ये याद रखना है। Now another thing, while we are reading the story, the 2 things that we have to keep in our mind is the character and the event. Every story is set against a certain backdrop. कुछ ना कुछ कहानी पीछे चली होती है हमेशा। हेमलेट की क्या कहानी थी, क्या चला था पीछे? His father, he was killed. His uncle, मतलब एक सेंट्रल आइडिया है ना। हमें सबसे पहले पता है कि जो कहानी होती है वो हम 2 शब्दों में बता देते हैं कि हेमलेट की कहानी क्या थी। That his father was killed, right? And what did he do else? That his uncle Claudius took his wife as well, right? And the whole act was after revealing this whole plot, that how did these events have taken place. Then it was all about revenge. अब हेमलेट को अपना बदला लेना, he want to take the revenge on his uncle, on his mother as well, and all the people who have helped him, assisted him, contributed in that conspiracy. इतनी सी स्टोरी है ना, इवेंट पता चल गया। अब इस इवेंट को इस स्टोरी में बनाने में किसने अपना मेन रोल प्ले किया है? क्लोडियस ने किया, हमें क्लोडियस याद रह गया। गट्यूड उसकी मदर ने प्ले किया, हमें याद रखा। किसने अपना कान लगाया है बिहाइंड द कर्टन, हु इज लिसनिंग? क्लोनियस। ठीक है, तो आपको इवेंट इस तरह से याद रखने हैं। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। लिटरेचर को आपको एज आर्टिस्टिक जॉनर देखना पड़ेगा इटसेल्फ। जॉनर हमेशा नोवेल और ये स्टोरीज नहीं होते, बट लिटरेचर इन इटसेल्फ अ जॉनर जो कि फिलोसफी और साइकोलॉजी से बना है, और आपको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना भरना पड़ेगा। मे बी आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल मैन ड्रॉन टुवर्ड्स द बिजनेस कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज, but at the same time you want to be a person who can think, on a very wild stream, है ना। तो उस तरह से चीजें हैं, उस तरह से एक इंटरेस्ट हम डेवलप करेंगे। तो ये चीजें हैं, जब आप कोई भी एज पढ़ेंगे आप कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी देख लेंगे, आप इवेंट देख लेंगे कि क्या क्या है इवेंट है, उसके मेजर राइटर्स क्या है, माइनर राइटर क्या है। मेजर राइटर्स वो होते हैं जो काफी फेमस होते हैं, आपको पता है ड्रैडन सबने सुना है, शेक्सपियर सबने सुना है, यूनिवर्सिटी विट सबने सुने हैं, रॉबर्ट ग्रीन किसने सुना होगा। तो ये माइनर राइटर्स आ गए, इनका क्या मायने रखता है? इनके बस मायने भी वही रखते हैं कि इन्होंने एक कौन सा वर्क, व्हाट वर्क दे हैव रिटन, दैट वन वर्क व्हिच दे हैव रिटन, वही हमारे लिए मायने भी रखता है। तो बस ये माइनर राइटर्स होते हैं। जब हम आपकी मेटाफिजिकल की बात करते हैं तो एंड्रयू मार्वेल सबसे पहले आता है। ठीक है, हमारे माइंड में जॉन डन सबसे पहले आता है, जॉर्ज हर्बर्ट बाद में याद आते हैं, हेरिक आपका बाद में याद आता है। तो ये आपके माइनर राइटर्स हो गए, इसमें ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये आपको फोकस करना है, ये आपको पता करना है। एक एज में इस तरह से आपका ब्रिटिश लिटरेचर कवर होता है। सून आई विल मेकिंग अ वीडियो ऑन यू हाउ टू स्टडी ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आपके लिए हर एक चीज को क्रिस्प एंड क्लियर बना देना है, हर एक चीज आपके पास बता देनी है, आपके पास रख देनी है, पढ़ना आपका काम है। ठीक है, भूपेश शर्मा सर के अंडर आओगे, मेरे अंडर आओगे, आप पढ़ोगे, आपको पूरी मेंटरशिप दूंगा फॉर द 6 मंथ, दिसंबर के लिए भी दूंगा। ठीक है, आगे जून के लिए तैयारी करनी होगी तो जेआरएफ के लिए प्रेपरेशन करवा देंगे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल दूंगा। ठीक है, यू सिंपली हैव टू स्टडी, आपका बाकी कुछ काम नहीं है। ये कोई बड़ी वो नहीं, चंद्रयान की तरह कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, बस खाली पढ़ना है। वो मुझे पता है कि आपको कितना पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है, कौन सा पकड़ना है, एवरीथिंग विल बी क्रिस्प एंड क्लियर,
है ना। एक बार में एग्जाम को निकाल लो, 6 महीने से ज्यादा इस एग्जाम को मत देना, ज्यादा से ज्यादा 1 साल दे दिया, इससे ज्यादा नहीं। पढ़ना तो पड़ेगा, अगर जीआरएफ निकालना है चाहे नेट निकालना है। नेट के बाद नौकरी क्या मिलती है क्या नहीं मिलती उस पर और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस होल सेशन। सो नाउ वी गोना रैप अप with whatever we have done till now, the 16 your periods, and then the ways that what we should be targeting at while we are reading those ages. I hope you enjoy the video, and do make sure that you subscribe and like and share with the many other people. And if you want to join our courses, want to buy the study material, want to join our your mentorship program, so you can contact us on the given numbers. Soon I'll be back. Till then time, this is Bhupesh Sharma signing off. If I missed anything, something, please let me know in the comment section below.